Theorem 6.4. The Cartesian equations of the line passing through 2 points A x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 is x minus x1 upon a normal formula था. A यानी कौन था? डायरेक्शन रेशियो. A B C कौन डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालते हैं अपन लोग? x2 minus x1 y2 minus y1 है z2 minus तो वही फॉर्मूला x minus x1 upon h है वो. But a can be written as x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon b है. But b can be written as y2 minus exactly is equal to z minus z1 upon c है. लेकिन c can be written as z3 minus z2 minus z1. That's all. फॉर्मूला तैयार हो गया. x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. These are the Cartesian equations of the line L which passes through 2 points A x1 y1 z1 and b x2 y2 z2. Now proof में क्या याद रखना है आपने को? कुछ नहीं, एक ड्राइंग निकालना तीनों पॉइंट का, डायरेक्शन रेशियो दोनों की निकालना दो तरीके से और उसको अपॉन कर देना. थ्योरम पूरा अपने मन से. तो ड्राइंग निकाला पॉइंट ए पॉइंट बी, दिए हुए पॉइंट्स. शाहरुख खान 2 पॉइंट दिए, यानी कितने दिए उसने? थंगबली ने शाहरुख खान को कितने दिए? 2 कनपट में दिए. शाहरुख खान सवेरे शाम क्या पी के आया? कॉम्प्लान एंड कॉम्बो बन के आ गया. कॉम्बो पी के आ गया और फिर कनपट में दिया कॉम्बो पी के पी एक्स वाई जेड. तो अब इसके देखो, लेट एल बी द लाइन, ड्राइंग से देखना है. Let L be the line which passes through A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2. Given data है. Let Px y z be a variable point on the line L other than A and B. Therefore, direction ratios of line L are x minus x1, y minus y1, z minus z1. ये direction ratios of line AB, line L हो गए. A और P लिया तो बट लाइन एल के ऊपर पॉइंट्स ए बी तो है. तो पॉइंट ए बी अगर लिए अपन ने तो डायरेक्शन रेशियोस क्या रहेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस z2 माइनस z1. बट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन एल आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 are the required Cartesian equations of the line passing through 2 points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2. इसका वेक्टर इक्वेशन क्या था, याद है क्या आपको? passing through 2 points r bar equal to a bar plus lambda in bracket b bar minus, very good, b bar minus, this was the vector equation. और कार्टेशियन इक्वेशंस क्या रहते हैं इसके? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस. कार्टेशियन इक्वेशन नाम क्यों आया? बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए इधर नाम आया कार्टेशियन इक्वेशंस. नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल. 2 फॉर्मूले भी याद रखो. पहला, equation of a line passing through a point A bar and parallel to a vector B bar is r bar equal to A bar plus lambda B bar. How is this line now? This is the equation of a line passing through a point A whose position vector is A bar and parallel to the vector small b bar. Correct. Second equation, r bar equal to A bar plus lambda in bracket B bar minus A bar. This is the equation of the line passing through a point A bar and second point B bar. इसमें वेक्टर पैरेलल नहीं होता है. इसका कार्टेशियन इक्वेशंस कैसे आएंगे? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. इसके कैसे आएंगे? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon. Correct, very good. Example 1.
verify that the point having position vector 4i cap minus 11j cap plus 2k cap lies on the line r bar equal to 6i cap minus 4j cap plus 5k cap plus lambda into 2i cap plus 7j cap plus 3k cap. ये है r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार. करेक्ट है. ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कब करेगा जब r बार इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन. इसके जगह मैं ये डालूंगा और यहां से लैम्बडा निकालने की कोशिश करूंगा. अगर लैम्बडा तीनों इक्वेशंस में सेम आया तो वो पॉइंट लाई करता है, नहीं तो लाई नहीं करता है. आंसर रिप्लेसिंग r बार बाय ये r बार बाय 4i cap minus 11j cap plus 2k cap we get ये r बार की जगह 4i cap minus 11j cap plus 2k cap is equal to 6i cap minus 4j cap plus 5k cap plus lambda into 2i cap plus 7j cap plus 3k cap. अब यहाँ i cap का कंपोनेंट कौन है? 4. राइट साइड में i cap का कंपोनेंट डायरेक्टली कैसे निकालना ध्यान दो. ये 6 है. करेक्ट है. 6 प्लस 2 लैम्बडा तो ये हो गया 6 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू ये वाला 4. जम गया. नो प्रॉब्लम. अब राइट साइड में जे कैप का कंपोनेंट कौन आएगा? -4 प्लस वेरी गुड -4 प्लस 7 लैम्बडा इज इक्वल टू एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड भी बोलो जोर शोर से. 5 प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्युटली करेक्ट. 5 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2. अब तीनों में से लैम्बडा निकालता हूं तो ये आएगा 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -2. ये 6 इधर गया तो 4 minus 6 is -2. 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -2 देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1 आ गया. यहाँ देखो -11 प्लस 4 यानी -7 सो लैम्बडा कितना आता है? -1. 3 लैम्बडा यही रहने दो, इसको इधर लेके जाओ तो ये क्या होगा? 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 - 5. 3 लैम्बडा इज इक्वल टू -3 देयरफॉर सांगा तीनों में लैम्बडा सेम आ गया. फ्रॉम ईच ऑफ दीज इक्वेशंस वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा देयरफॉर द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. कंफर्म हो गया. अब मेथड 2 जो अपन ने वेक्टर्स में यूज करते थे, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कब करेगा? जब ये लाइन और ये लाइन जो ये पॉइंट है, करेक्ट है, इसमें क्या करेंगे अपन? आर बार को इधर लेके आएंगे ए बार को, तो आर बार माइनस ए बार हो जाएगा इज इक्वल टू क्या रहता फिर? लैम्बडा बी बार. ये लैम्बडा बी बार यानी आर बार माइनस ए बार विल बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, यानी द वेक्टर्स बिकम कोलिनियर, यानी दैट पॉइंट विथ कोई वेक्टर लाइज ऑन दिस लाइन. तो अपन क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वेक्टर्स का. कौन सा वेक्टर का कंसेप्ट? आर बार माइनस ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार, यानी आर बार माइनस ए बार शुड बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, ये लाने की कोशिश करेंगे मेथड 2. इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार कैन बी रिटन एज आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार. दैट इज आर बार माइनस ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. कब होगा? Thus the point P R bar lies on the line if and only if R bar minus A bar is a scalar multiple of B bar. अब अपन क्या करेंगे? R bar कौन सा लेंगे पता है? R bar किसको लेंगे अपन? इसको R bar पकड़ेंगे. तो पहले लेते हैं R bar इक्वल टू, ये लाइन लेते हैं R bar इक्वल टू 6i cap minus 4j cap plus 5k cap plus lambda into this bracket. ये लाइन अपन ने ले लिया. हो गया? Therefore what is A bar? 6i cap minus 4j cap plus b बार कौन है इसमें? 2i cap plus 7j cap, क्योंकि लाइन क्या है? r bar इक्वल टू a bar plus lambda b bar. ये r bar इक्वल टू a bar plus lambda. The position vector of the given point is r bar equal to 4i cap minus 11j cap plus 2k cap. अब r bar minus a bar कितना आएगा? r bar वेक्टर minus a bar वेक्टर. This comes out to be minus 2i cap minus 2j cap minus 3k cap. कैलकुलेशन करके देखो. 4 minus 6 minus 2 minus 11 plus 4 minus 7 2 minus 5 minus 3. क्या कॉमन निकालूं? क्या कॉमन निकालूं इन तीनों में से? माइनस.
क्या बचा, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू, क्या बचा, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू, सांगा माइनस इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस 7j कैप, दैट इज -1 इंटू दिस इज नथिंग बट b बार, करेक्ट है. सो देयरफॉर आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू -1 इंटू b बार, यानी आर बार माइनस ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ b बार, देयरफॉर द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन. ये सेकंड मेथड है. 1 मिनट फिर से रिवाइज कर लेता हूं मैं, लेकिन ये मेथड ही ज़्यादा सिंपल और छोटी मेथड है. कुछ मत करो, ये आर बार के जगह ये डाल दो, करेक्ट है, और उसके बाद आई कैप जे कैप कॉम्पोनेंट को इक्वेट करो, तीनों इक्वेशंस में लैम्बडा सेम आ गया तो वो पॉइंट इस लाइन पे ला करता है, नहीं तो नहीं करता. सिंपल मेथड. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. Next example 2, find the vector equation of the line passing through the point having position vector 4i cap minus j cap plus 2k cap and parallel to the vector minus 2i cap minus j cap plus k cap. ये 1 या 2 मार्क के लिए बोर्ड में आ सकता है और MCQ में CET में आ सकता है. अभी एक्चुअली अपने कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अपने को कितना सिंपल लगता है. देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, एक्सिस, दिस इज द लाइन L जिसके ओर एक पॉइंट रहता है a बार और ये रहता है वेक्टर पैरेलल टू द लाइन L, करेक्ट है. अब ये लाइन L का वेक्टर इक्वेशन क्या रहता है, r बार इक्वल टू, क्या रहता है, r बार इक्वल टू बोलो a बार प्लस लैम्बडा. एग्जैक्टली उसमें a बार कौन है, इसमें a बार कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला. ये a बार है, ये कौन है, b बार. तो इक्वेशन क्या रहेगा, r बार इक्वल टू a बार प्लस, एग्जैक्टली. तो इसको अपन ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाकी लैंग्वेज किताब से देख सकते हो आप. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार, दैट इज r बार इक्वल टू a बार यानी ये 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, करेक्ट है, प्लस लैम्बडा इंटू ब्रैकेट b बार यानी अपनी लाइन, एग्जैक्टली जिसको अपनी लाइन पैरेलल है. वेरी गुड. तो ये हो जाएगा -2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप. दैट्स ऑल. नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल 3. फाइंड द, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is 2i cap plus j cap minus 3k cap. तो ये कौन है, ये कौन है, a बार है ना. आप इतना कंसेप्ट पे जोर दो ना. आप फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन, यानी कौन है ये, एग्जैक्टली, एंड परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, ये और ये. अब पहले मैं आपको इमेजिन करने लगाता हूँ, फिर आपको समझेगा करना क्या है. ये अपनी एक प्लेन है जिसके ऊपर b बार है और ये c बार है, और अपनी लाइन इस प्लेन को ऐसी है, यानी अपनी लाइन ये 2 वेक्टर्स को कैसी हो गई, एग्जैक्टली. तो मैं क्या करूँगा, ये b बार और c बार का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, तो वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. तो ये अपनी लाइन L है और ये b बार और c बार का क्रॉस ये हो गया, यानी ये जो b बार क्रॉस c बार है अपनी लाइन को कैसा रहेगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, कैसा रहेगा, यानी आई हैव टू फाइंड b बार क्रॉस c बार, दैट विल वर्क एज अ वेक्टर b बार. और पॉइंट तो दिए हुए हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो a बार हो ही गया वैसे भी डायरेक्टली, ठीक है. तो सॉल्यूशन, लेट a बार इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, b बार इक्वल टू I cap plus j cap plus k cap, and c bar is equal to I cap plus 2j cap minus k cap. किताब से मैं हटूंगा नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन देम द नेम्स. इसको a बार और इसको p बार और q बार. फिर p बार क्रॉस q बार लेता था तो वो होता था b बार, करेक्ट है, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करता था. बट सो ये हो गया वेक्टर्स. ना अपनी लाइन जो है वेक्टर कौन से पॉइंट से पास हो रही है, a बार से पास हो रही है, और अपनी लाइन कैसे, ये दोनों को कैसी है,
परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड लाइन अपनी ये दोनों वेक्टर्स को कैसी है, परपेंडिकुलर। तो अपन लेंगे नाउ बी बार क्रॉस सी बार इज अ वेक्टर which is perpendicular to both B bar and C bar. This we know. ये B बार है, ये C बार है, तो B बार क्रॉस C बार किधर जाता, ऊपर जाता है। यानी ऐसा वेक्टर जो दोनों को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, तो इसमें जितने सारे वेक्टर्स रहेंगे उनको भी कैसा रहेगा, करेक्ट है। Therefore B bar cross C bar is parallel to the given line. Am I correct? Correct है। अब now I will find B bar cross C bar. क्या फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट पहली रो क्या आएगी, वेरी गुड, बढ़िया, आई कैप जे कैप एंड पहली रो आएगी। उसके बाद सेकंड रो किसकी आएगी, बी बार की, यानी कौन हो गया, 1 1 1, फिर 1 2 -1। नाउ आई विल सॉल्व, दिस इज -1 -2, यानी कितना हो गया, -3 आई कैप, फिर ये होगा -1 यानी -2 बट माइनस माइनस +2 जे कैप, फिर ये 2 -1 यानी प्लस, करेक्ट हो गया। एक्चुअली अभी रोल देखो, रेड पेन से लिखता हूं, अभी ए बार बी बार सी बार को भूल जाओ, अभी ये अपना ए बार है और एक्चुअली अभी ये कौन है, बी बार अपना एक्चुअली, इसलिए मैं बी बार और क्यू बार लेना चाहिए था, बोल रहा था। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू क्या लिखो, ए बार प्लस लैम्डा, इसमें ए बार कौन रहेगा अभी, 2 आई कैप प्लस जे कैप, वेरी गुड, प्लस क्या लिखूं, लैम्डा इंटू, बोलो, -3 आई कैप, एब्सोल्युटली करेक्ट माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेरी गुड। दिस इज द वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। सब किताब से हटके काम करते हैं। इसको मैं नाम देता हूं P बार, इसको नाम देता हूं Q बार, यहां लिखता हूं P बार क्रॉस Q बार, किताब से हट गए। This is perpendicular to both P bar and Q bar. Therefore, P bar cross Q bar is parallel to the given line. Now this is P bar cross Q bar is equal to this vector. Now I can give the name B bar, and therefore the vector equation of the line is R bar is equal to A bar plus lambda. This is the answer. Up. Example number 4. Find the vector equation of the line passing through the point, passing through 2 I cap plus j cap minus k cap. ये यानी क्या है, ये ए बार है कि बी बार है, एग्जैक्टली ए बार हो गया। एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ओके। तो पहले मैं आपको ड्राइंग से बताता हूं और उसके बाद आप मेरे को समझा के दिखाओगे कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। X-axis, Y-axis, Z-axis. I want to find the vector equation of the line L. Say, this is the line L. Passing through the point A, bracket में A bar. But parallel to the line, joining the points, ये पकड़ो B, B bar, C, C bar. फिर किताब में B C है, तो मैं P Q लिया रहता, करेक्ट है। अब to find vector equation of any line we require only two things. I repeat, to find equation of any line L we require only two things. One point which the line passes जो given है, and one vector which is genius हो आप लोग, genius, outstanding, which is parallel to the given line. तो line L को एक वेक्टर कौन सा रहेगा, वो BC बार रहेगा। I will find BC bar. This vector BC bar will be parallel to the line L. How will I find BC bar? BC bar is C bar minus खत्म। तो उसका नया नाम देंगे, क्या दो नाम, B बार, एग्जैक्टली। तो ये A बार है और ये खत्म। वेक्टर इक्वेशन क्या, R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, करेक्ट है। दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी एग्जाम्पल छुड़ाने का। आंसर
let A, B and C be the points with PVs. PVs यानी पोजीशन, बिल्कुल सही है, with PVs A bar, B bar and C bar respectively. Then A bar is equal to 2I cap plus J cap minus K cap. Small b bar will be minus I cap plus J cap plus 4K cap, and small c bar will be I cap plus 2J cap plus 2K cap. Now I will just find BC bar. BC bar is C bar minus B bar. अब C bar minus B bar यानी I plus I कितना हो गया? 2I cap. ये क्या हो गया? प्लस J cap माइनस 2K cap. कुछ गलत है क्या? देखो, कंफर्म करो. C bar माइनस B bar. BC bar यानी कौन? C bar माइनस B bar. 2I cap प्लस J cap माइनस 2K cap. अब एक्चुअली ये इसको नया नाम दूंगा मैं. क्या नाम दूंगा? B bar. Exactly. Actually B bar तो उधर अलग है. But now this is my B bar. Therefore, vector equation of line is. Therefore, vector equation of line passing through A bar and parallel to the vector. अब B bar I cannot say क्योंकि B bar कुछ अलग है ना. Parallel to the vector 2I cap plus J cap minus 2K cap is R bar is equal to. Now I cannot give A bar plus lambda B bar क्योंकि किताब में B bar कौन दिया है? किताब में B bar कौन दिया है? ये. लेकिन अपना B bar जो चाहिए वो कौन है? ये. तो डायरेक्टली लिखता हूँ. हाँ बोलो. A bar plus lambda B bar है. A bar यानी कौन लिखूँ? क्या लिखूँ यहाँ पे? 2I cap बिल्कुल सही है. 2I cap प्लस हाँ प्लस सांगा लैम्बडा इन ब्रैकेट 2I cap plus J cap. Absolutely correct. Very good. 2I cap plus J cap minus 2K cap is the answer. कंफर्म ड्राइंग वाले पहुंच गए एकदा क्योंकि किताब में ड्राइंग दिया नहीं है. Example number 5. Find the vector equation of the line passing through 2 points A 1 2 3 and B 2 3 4. Simple problem. फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन है तो फॉर्मूला बोलो R bar equal to A bar plus lambda in bracket. Absolutely correct. Let position vectors of the points A and B be A bar and B bar. Therefore small a bar is equal to I cap plus 2J cap plus 3K cap. And small b bar equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. तो पहले b bar माइनस a bar फाइंड करके रखो. फॉर्मूला हर एक को याद है. b bar माइनस a bar यानी दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर. तो ये 2I माइनस I यानी I cap 3J माइनस 2J यानी प्लस J cap 4K cap माइनस 3K cap यानी प्लस K cap. ये हो गया b bar माइनस a bar. The equation of the line passing through 2 points A bar and B bar is R bar equal to A bar plus lambda in bracket B bar minus A bar. The equation of the required line is R bar equal to A bar यानी कौन है? पहला वेक्टर A cap plus 2J cap plus 3K cap हो गया. I cap plus 2J cap plus 3K cap plus lambda in bracket ये रहेगा B bar minus A bar जो अपन ने अभी फाइंड किया. कितना आया ये? I cap plus J cap plus exactly. ये आंसर फिनिश हो गया. इतना सिंपल है. अब फाइंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A 1 2 3. यानी ये कौन है? XY Z है कि X1 Y1 Z1 है? X1 Y1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 2 3 7. यानी ये कौन है? ABC. करेक्ट है. तो फॉर्मूला क्या आता है? x minus x1 upon a is equal to ये हो गए कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन. और क्वेश्चन वही है, फाइंड द कार्टेशियन. वेरी गुड. द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन passing through 2 points A x1 y1 z1 passing through a point A x1 y1 z1 and having
डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी आर x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Here x1 y1 z1 is nothing but 1 2 3 x1 y1 z1 और ABC is equal to डायरेक्शन रेशियोज कौन है 2 3 7 एंड डायरेक्शन रेशियोज आर 2 3 7 यानी ये कौन हो गए ABC हो गए, ये तीनों कौन हो गए A B and C. Okay, therefore the required equations are x minus x1 upon a यानी अब डायरेक्ट CET की तैयारी, फार्मूले वगैरह ज़्यादा झंझट में पढ़ने नहीं, लैंग्वेज में डायरेक्ट आंसर कैसा निकालना, x माइनस 1 अपॉन 2, आइस को टेन करो, x माइनस 1 अपॉन 2 क्योंकि फॉर्मूला क्या है x माइनस x1 अपॉन a. वेरी गुड, तो हो गया x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन, करेक्ट, इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन, डायरेक्ट आंसर. तो इतनी लैंग्वेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती CET में, डायरेक्ट आंसर. Find the Cartesian equations of the line passing through 2 points 1 2 3 and 2 3 4. Cartesian equations. First I will tell you the lengthy state board method, then I will tell you how to solve in CET and JEE. The Cartesian equations of the line passing through 2 points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 are, formula सांगा, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon, correct, very good. Here x1 y1 z1 is equal to 1 2 3 and x2 y2 z2 is equal to 2 3 4. Therefore the required Cartesian equations are x minus x1 यानी कौन 1, x minus 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कौन 2 माइनस 1, आई इसको टेन किया, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 यानी कौन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, वेरी गुड, इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी देखो ये सब 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1. तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1. किन्हों के नीचे 1 है, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो क्या रहेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस, x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू, वेरी गुड. नाउ विल गो टू एग्जांपल 8. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 minus 3. कार्टेशियन इक्वेशंस है कौन है ये, x1 y1 z1, ये कौन है x1 y1 एंड अब अपॉन क्या चाहिए मेरे को, ABC चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स b बार इज इक्वल टू i कैप j कैप प्लस k कैप एंड c बार इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. अपनी लाइन ये दो वेक्टर्स को कैसी है, b बार और c बार को परपेंडिकुलर है. तो अपन इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, लाइन और प्लेन में. ये है प्लेन जिसके ऊपर एक बी बार है और एक सी बार है, और अपनी लाइन इस प्लेन को यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ अपनी लाइन एल है ये. तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड बी बार, क्या का फाइंड करूँ, बी बार क्रॉस सी बार, तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. इमेजिन कर रहे हो. तो ये है अपनी लाइन एल और ये हो गया बी बार क्रॉस सी बार. अब ये बी बार क्रॉस सी बार अपनी लाइन एल को कैसा है, तो इसको नया नाम क्या दूं, बी बार. और अपनी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 1 माइनस 3 से पास हो रही है. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब आपको कार्टेशियन चाहिए कि वेक्टर चाहिए, देख लो. कार्टेशियन चाहिए तो फॉर्मूला आएगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, इमेजिन कर लिया आप लोगों ने, परफेक्ट आंसर. We know that b bar cross c bar is a vector perpendicular to both b bar and c bar. देखा अपन, ये बी बार है, ये सी बार है, तो बी बार क्रॉस सी बार को तो ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, यानी ये वेक्टर रहेगा बी बार क्रॉस सी बार, जो बी बार और सी बार दोनों को कैसा है, क्योंकि वो बी बार क्रॉस बी बार और सी बार के प्लेन को ही, तो ये वेक्टर का नाम बताओ, बी बार क्रॉस सी बार. इसका नाम बताओ, बी बार किधर है,
प्लेन पे। सी बार किधर है? इधर। वेरी गुड ईशा। तो बी बार क्रॉस किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये हो गया बी बार क्रॉस सी बार। ये कौन है? बी बार क्रॉस सी बार। तो ये अपनी लाइन है, अपनी लाइन ऐसी है, मान लो ये लाइन है, और ये कौन हो गया? बी बार क्रॉस सी बार। तो अभी और इमेजिनेशन के लिए परफेक्ट निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। ये अपनी कोंटे में लाइन एल है, और अभी मैंने फाइंड किया बी बार क्रॉस सी बार, तो ये कहाँ गया? और अपनी लाइन कौन है? ये। अब अपनी लाइन और ये लाइन के बी बार क्रॉस सी बार कैसे है? तो इसको नया नाम क्या दूँ? करेक्ट हर्षिता, वेरी गुड। तो इसीलिए we know that b bar cross c bar is perpendicular to both b bar and c bar. Therefore, b bar cross c bar is equal to determinant ijk b bar की रो 1 1 1, c bar की रो 1 2 -1. तो this is -1 -2 into I cap यानी -3 I cap, -1 यानी -2, but minus of -2 is plus 2j cap, 2 -1 यानी plus k cap is parallel to the required line. बोला था अपन ने ये अपनी लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, और ये वेक्टर मिल गया अपने को, जो लाइन को कैसा हो गया अभी? पैरेलल। अब ये लाइन को पैरेलल हो गया, तो ये वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं? -3 to 1. तो अपने लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज करेंगे -3 to 1. Therefore the direction ratios of the required line are -3 to 1. यानी ये कौन हो गए? x1 y1 z1 हो गए क्या? कि ABC हो गए? अरे क्या होशियार हो गए आप लोग, वेरी गुड। These are nothing but a comma b comma c, and it passes to the point 2 1 -3. ये कौन हो गए? x1 y1. Therefore its Cartesian equations are x minus x1 upon a, यानी कौन? x minus 2 upon -3 is equal to y minus y1 upon b, यानी y minus 1 upon 2 is equal to z minus 3 क्या? z, वेरी गुड, z plus 3 upon 1. ये हो गया इसके रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन. दैट्स ऑल. क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस r bar equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda in bracket 2I cap minus 2j cap plus k cap, and r bar equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda in bracket I cap plus 2j cap plus k cap. अब इनको मैं नाम देता हूँ. ये है r bar is equal to a bar plus lambda b bar, यानी ये b bar हो गया. ओके. दूसरा हो गया r bar equal to a बार. ये a बार, ये दोनों में सेम ही है, देखो कुछ फर्क नहीं है. एंड दिस आई गिव एज c बार. नाउ व्हेन आई राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एज r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? दैट लाइन पासेस टू द पॉइंट 1 2 and 3 एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर 2i cap minus 2j cap plus k cap. ये लाइन पासेस टू द पॉइंट 1 2 3 एंड parallel to the vector I cap plus 2j cap plus absolutely correct. तो यहां से अपन ने एक ड्राइंग निकाला. ये लाइन L1, इसको पैरेलल वेक्टर b बार, यानी ये b बार है. ये लाइन L2, इसको पैरेलल वेक्टर c बार निकाला. अब आपको चाहिए L1 और L2 के बीच का एंगल, ये थीटा चाहिए. बट टू लाइंस के बीच का एंगल निकालना डिफिकल्ट है, बट दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सिंपल है. अब आपका ज्योमेट्री क्या बोलता है? L1 और L2 के बीच का एंगल निकालना इज सेम एज B बार और C बार का एंगल निकालना, बिकॉज B बार इज पैरेलल टू लाइन L1 एंड C बार इज पैरेलल टू लाइन L2. So angle between L1 and L2 is same as angle between, बोलो, B bar and C bar. Exactly. तो आंसर भी चालू करेंगे अपन लिखना इसको. ओके. सो आंसर, let B bar be a vector parallel to line L1 and C bar be a vector parallel to line L2. क्या चाहिए आपको? एंगल बिटवीन द टू लाइंस. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस L1 and L2,
एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2. देन लैंग्वेज देखो, देन बोलो द एंगल, बिल्कुल सही, बिटवीन द वेक्टर्स B bar and C bar is also theta. Now what I will do, I will just find B bar dot C bar. Correct है, very good. Therefore B bar dot C bar is equal to mod of B bar into mod of C bar into cos theta. That is cos theta is equal to B bar dot C bar upon mod of B bar into mod of C bar, इक्वेशन नंबर 1. ये अपना फॉर्मूला ही है एंगल निकालने का. What is cos theta? B bar dot C bar upon mod of B bar into mod of C bar. Now अब एक एक चीज फाइंड करूंगा. B bar dot C bar डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो यहाँ से. हाँ, आइस को टेन करो. B bar dot C bar 2 into 1 प्लस माइनस 2 into 2 प्लस 1 into 1 into, तो ये हो गया 2 into 1 प्लस माइनस 2 into 2 प्लस 1 into 1. इसको आइस को टेन करो फिर से एक बार. कैसे फाइंड किया? आइस को टेन करो सभी लोग. जम गया? सो दिस इज इक्वल टू, कैसा, फिर से एक बार आइस को टेन करो. B बार डॉट C बार कैसे निकालेंगे? ये B बार है, ये C बार है, तो डॉट डॉट कैसे निकालते हैं? 2 into 1 प्लस माइनस 2 into 2 प्लस 1 into 1. आइस को ट्रेन करके रख दिया. यानी 10 साल के बाद भी पूछा तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आइस को ट्रेन किया हुआ है अपन ने. सो दिस इज 2 minus 4 plus 2, 4 minus 4 is equal to 0, इक्वेशन 2. कुछ निकालने की जरूरत उसके बाद नहीं है, डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत वैसे तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ गया, cos थीटा 0 आ गया. किस एंगल की cos वैल्यू 0 आती है? कितना आता है? पाई बाय 2. ओके, देखिए. सो ये 0 आ गया. नाउ मॉड ऑफ B बार कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट ऑफ, सांगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर. मॉड ऑफ B बार कैसे फाइंड करेंगे? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. कितना होता है ये? 9. रूट 9 यानी 3. हाउ विल यू फाइंड मॉड ऑफ C बार? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 4 और 2 6 आएगा ना? रूट 6 आएगा ना? ओके, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4. What I will do, I will put all these values in equation 1. In CET and JEE there is no need to find it because numerator 0 आ गया और डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, बिकॉज ये नॉन जीरो वेक्टर से B बार और C बार. तो आंसर क्या आने वाला है? cos थीटा 0. cos थीटा 0 यानी थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री. करेक्ट है. पुट 2, 3 and 4 in equation 1. Therefore cos theta is equal to 0 upon 3 into root 6. Therefore cos theta is equal to 0. Therefore theta is equal to 90 degree. अभी किसके बीच का एंगल पूछ रहे हो? तो अपना हाँ कितना था? इक्वेशन नंबर 2 1 into 1 1. अच्छा 1 into 1 1 यानी आंसर 0 नहीं आता, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है. नहीं, डेफिनेटली देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक. अपन ने चेक नहीं किया. किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक तो बहुत जबरदस्त रहती है. एक्चुअली इसमें 2K है. ओके, डेफिनेटली प्रिंटिंग. सभी लोग अपने को इसमें चेक चेंज कौन था, प्रॉब्लम रॉन्ग है. सभी लोग इसमें चेक कर चेंज कर. हाँ, अब देखो फिर से B बार डॉट C बार कैसे था? 2 into 1 2 माइनस 2 into 2 4, ये 1 into 2, तो ये हो गया 4 minus 4 कितना आता है? 0. सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है किताब में ना.
अपन क्वेश्चन देखते अपन तो डायरेक्टली चालू कर दिया क्या cos थीटा आंसर 90 डिग्री आता, बाकी सब अपने मन से छुड़ाया चालू किया अपन ने, देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया उसको। हाँ, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? सेकंड वेक्टर लाइन में आर बार इज इक्वल टू ये ए बार प्लस लैम्बडा सी बार में किताब में दिया है 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, लेकिन क्या चाहिए वहां पे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सभी ने चेंज कर दिया है ना, कि तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना किताब में, चेंज कर दिया सबने अभी। और अब बी बार डॉट सी बार आता है डेफिनेटली, फिर से एक बार 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 माइनस 4 प्लस 2, 4 माइनस 4 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर L1 परपेंडिकुलर टू L2। और क्वेश्चन क्या पूछा? एंगल बिटवीन द लाइंस, देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस is 90 degree, that's all।